Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Nasteva Gatiranyata श्रीमान राम रूप प्रभु जी का के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक ही मिनट लेता हूँ प्रभु जी। श्रीमान हिज ग्रेस राम रूप प्रभु जी हिज परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी के कृपा पात्र ब्रह्मचारी समर्पित शिष्य है और प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। कई वर्षों से जुहू मंदिर में हेड पुजारी के रूप में और बहुत सारा प्रचार करते हैं यूनिवर्सिटी में और अलग अलग अन्य जगहों में। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी ने विशेष अनुकंपा से समय निकाल के यहाँ श्रीमद् भागवतम के बारे में हमें समझाने के लिए आए हैं। तो आइए हम सब सावधानी से प्रभु जी से श्रवण करते हैं और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करके प्रभु जी का और सभी अतिथि भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hindi, I will read out in English. Bhagavatam. Yes, Prabhuji. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 8, questions by King Parikshit, text number 14. Yasmin karma samavayo yatha yenopaguyate gunanam guninam chaiva parinanam abhipsatam. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Then again, kindly describe how the proportionate accumulation of the reactions resulting from the different modes of material nature act upon the desiring living being, promoting or degrading him among the different species of life, beginning from the demigods down to the most insignificant creatures. Purport: the actions and reactions of all works in the material modes of nature, either in the minute form or in the gigantic form, are accumulated, and thus the result of such accumulated actions and reactions of karma or work become manifested in the same proportion. How such actions and reactions take place, what the different procedures are, and in what proportion they act are all subject matters of Maharaj Parikshit's inquiries from the great Ramana Sukadeva Goswami. Life in the higher planets, known as the abodes of the denizens of heaven, is obtained not by the strength of spacecraft, as is now being contemplated by the inexperienced scientists, but by works done in the mode of goodness. Even on the very planet where we are now living, there are restrictions upon the entrance of foreigners into a country where the citizens are more prosperous. For example, the American government has many restrictions for the entrance of foreigners from less prosperous countries. The reason is that Americans do not wish to share their prosperity with any foreigner who has not qualified himself as a citizen of America. Similarly, the same mentality is prevailing in every other planet, where there are more intelligent living beings residing. The higher planetary living conditions are all in the mode of goodness, and anyone desiring to enter the higher planets like the Moon, Sun, and the Venus must qualify thoroughly by activity in complete goodness. Maharaj Parikshit's inquiries are on the basis of proportionate actions of goodness, which qualify one in this planet to be promoted to the highest regions of the universe.
Even on this planet of our present residence, one cannot achieve a good position within the social order without being qualified with proportionate or good work. One cannot forcibly sit on the chair of High Court judge without being qualified for the post. Similarly, one cannot enter into a higher planetary systems without being qualified by good works in this life. Persons addicted to the habits of passion and ignorance have no chance of entering the higher planetary systems simply by an electronic mechanism. According to the statement of the Bhagavad Gita, persons trying to qualify themselves for promotion to the higher heavenly planets can go there. Similarly, persons trying for the Pitralokas can go there. Similarly, persons trying to improve the conditions on this earth can also do that. And persons who are engaged in going back home, back to Godhead, can achieve that result. The various actions and reactions of work in the mode of goodness are generally known as pious work with devotional service, culture of knowledge with devotional service, mystic powers with devotional service, and at last, devotional service unmixed with any other varieties of goodness. This unmixed devotional service is transcendental and is called Parabhakti. It alone can promote a person to the transcendental kingdom of God. Such a transcendental kingdom is not a myth, but is as factual as the moon. One must have transcendental qualities to understand the kingdom of God and God Himself. Om Ajnanatimidasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, आप में से कितने लोग सपोज आपका भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं किया तो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दृढ़ता नहीं प्रभु। हरे कृष्ण। Anybody? No, Prabhuji. Sure, पक्का? Yes, Prabhu. Even if we have to stay here, no problem. प्रभुपाद जी भविष्यवाणी किए थे कि 90% ऑफ ISKCON डिवोटीज स्वर्गलोक जाएंगे। तो ये श्लोक में अर्जुन पूछ रहे, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कौन सा कर्म करने से स्वर्गलोक जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे। ये सब भागवतों में लिखा है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए, ये इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हम स्वर्गलोक जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन मन में बहुत ही तीव्र इच्छा हम रखेंगे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए सुंदर स्त्री के साथ एंजॉय करना चाहिए या बाकी सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान 11 स्कंद भागवत में लिखते हैं और प्रभुपाद जी भी बहुत सारे तात्पर्य में लिखते हैं कि बाद में आना। कृष्ण भगवान मेरा भक्त एंजॉय करना चाहते हैं, फिर ऐसे भक्त को स्वर्गलोक भेज के उधर वो एंजॉय करने के बाद वापस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेके फिर बाद में मेरे पास आ सकता है। जो जैसा कि हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में एड में वगैरह, सो एंड सो अग्रवाल दिवंगत हो गया, नहीं तो स्वर्गवास हो गया, ऐसा लिखते हैं।
लेकिन उन लोगों को लिखना चाहिए नरकवास हो गया, क्योंकि स्वर्गवास होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्व गुण में हमारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो व्यक्ति स्वर्गलोक जाना चाहता है, और जो तमोगुण में है और जो रजोगुण में है, वो व्यक्ति ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर लोक में नहीं जाएंगे। जैसा कि भगवान 14 अध्याय में कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो जब शरीर त्यागने के समय जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग ऊर्ध्व लोक जाएंगे, और जो व्यक्ति रजोगुण में फिर वापस शरीर त्याग करते हैं, वो व्यक्ति वापस मनुष्य शरीर में जन्म लेगा। और जो तमोगुण में रहता है उसको जानवर का शरीर योनियों में या नरकलोक जाना पड़ता है। इसलिए स्वर्गलोक जाने के लिए तपस्या करना पड़ती है, बहुत धन व्यतीत करके खर्चा करके बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न करना पड़ता है। और जो ब्राह्मण को अपने धर्म स्वधर्म के अनुसार सारे नियम पालन करना पड़ता चाहिए, और जो क्षत्रिय को सारे एंजॉयमेंट करने के बाद वो वन में जाना पड़ेगा, और उधर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके उधर बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता है, तभी स्वर्गलोक जा सकते हैं। हम महाभारत पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमेशा लिखा जाता है कि वो ये राजा स्वर्गलोक गया, वो राजा स्वर्गलोक गया, ये ब्राह्मण स्वर्गलोक गया, ऐसा लिखते हैं। उधर कर्मकांड बहुत है, लेकिन उनके लिए बहुत ही कठोर तपस्या करना पड़ता है। जैसा कि प्रभुपाद जी एक बार सब लोग बातचीत कर रहे थे, फिर जो व्यक्ति एक बार भी आउट ऑफ टर्न सीमन डिस्चार्ज करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग ऊपर के लोकों में जा नहीं सकता। जैसे करके खास करके ब्रह्मलोक, जो व्यक्ति ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं उसको अस्खलित ब्रह्मचारी रहना पड़ता है जिंदगी में, जीवन पूरा जीवन। वैसे ही बाकी लोकों में जाने के लिए भी यही करना पड़ता है, बहुत ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। और जैसे कि चातुर्मास में एक कठोर नियम पालन करना पड़ता है, और बहुत सारे व्रत है, नियम है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और बहुत सारे पैसे धन खर्च करना पड़ता है यज्ञ करने के लिए वगैरह, ये सब है। लेकिन ये सब वेस्ट है, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 7वां स्कंद भागवतम परपोट में एक श्लोक का परपोट में लिखते हैं, मतिर्न कृष्णे परतस्वतोवा मितो विपत्येत गृहव्रतानि अदांत गोबीर विशताम तनिश्राम पुनस पुनस चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज से पूछते हैं हिरण्यकशिपु, आप भक्त कैसे बने हो? कोई भक्तों का संग नहीं है, ऐसा भक्त कैसा बने? तो तभी वो उत्तर में प्रहलाद महाराज ये श्लोक कहते हैं। ये श्लोक के परपोट में लिखते हैं, पुनस पुनस चर्वित चर्वणानाम, चूइंग द चूड, एक ही को वापस बार बार। उधर परपोट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं विश्वनाथ जी ठाकुर, ये जो स्वर्गलोक जो है एक्चुअली प्रॉस्टिट्यूट हाउस है। एक ही अप्सरा को सारे लोग, बहुत सारे लोग आके एंजॉय करते रहते हैं, और एक ही एंजॉयमेंट है। मैं हमेशा जोक करता रहता हूँ कि मुसलमान लोग बोलते हैं कि जिहादी करो, जिहाद करो, जन्नत में जाएगा, 72 नूर वर्जिन गर्ल्स के साथ एंजॉय करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्वर्गलोक में नो वर्जिन गर्ल्स, सब लोग एंजॉय, बहुत सारे लोग एंजॉय करके जाते हैं।
इसलिए हम इच्छा नहीं करना चाहिए। सपोज एक्चुअली लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक लेक्चर में बोले थे भी कि इस्कॉन डिवोटीज 90% डिवोटीज स्वर्गलोक जाएंगे। हम सोचते हैं इधर कोई डिवोटी मर के चला गया, हम सोचते हैं इधर गोलोकुंडान चला गया, वैकुंठ चला गया, फिर हम स्वर्गलोक जाएंगे, फिर उधर भी मिलेंगे इस्कॉन डिवोटीज। अरे प्रभु जी महाराज आप इधर है, हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। लेकिन आप में से कितने लोग नहीं चाहते हैं कि सपोज डिवोशन सर्विस में फेल हो गया, तो जैसा कि कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। क्योंकि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण आयते ही श्रद्धया पे तो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्ध काम गति कृष्ण गच्छति। कोई आया है भक्ति में, कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस किया है डिवोशन सर्विस योगा, और वो पतन हो गया क्योंकि उनका मन अस्थिर है, फिर ऐसा व्यक्ति का गति क्या होगी? काम गति कृष्ण गच्छति, किधर जाएगा? क्वचिन उभय विभ्रष्ट चिन्नाभ्र इव नाशये अप्रतिष्ठो ही महाबाहो विमूढ़ भ्रमणपति। जैसा कि जो मेघ है बाकी मेघों से अलग हो गया, फिर वो इधर ना उधर का, ना इधर का, ना उधर का हो जाता है, फिर ऐसा व्यक्ति का गति क्या होगी? ऐसा ये तन्मे संशयम कृष्णा। मेरा एक डाउट है ना, सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में आचार्य लिखते हैं प्रभुपाद जी वगैरह कि जीव एक आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किधर जाती है हम नहीं बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ कृष्ण भगवान जानते हैं हमको किधर भेजना है। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं, एतन में संशय कृष्ण चेता नहीं उपपद्यते नहीं अच्छे संशय चेता नहीं अवशिष्यते। पूरा डाउट सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं। आत्मा का प्रगति कैसा होती है शरीर त्यागने के बाद, सिर्फ आप बोल सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशम तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृतस्य दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण काम अच्छे पायस का एक्टिविटी करते हैं उनका दुर्गति कभी नहीं होगी मेरा प्रिय अर्जुन ताता। और ऐसे लोग प्राप्य पुण्य कृतम लोकम पुण्य लोकों में जाएंगे, और उषित्वा शाश्वती समान बहुत काल तक एंजॉय करेंगे, और उसके बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। फिर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति करके फॉल डाउन हो गया, फिर ऐसा व्यक्ति स्वर्गलोक जाए, वैश्य रिच अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेगा स्वर्गलोक से आने के बाद। फिर जो व्यक्ति बहुत काल तक साधना भक्ति अभ्यास किया है और उसका पतन हो गया है, ऐसा व्यक्ति एक वैष्णव का एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, राइट। अथवा योगिनामेव कुलो भवति धीमता एतद् दुर्लभतरम लोको जन्म ईदृशम। फिर बहुत भक्ति करने के बाद जो भाग्यवान होता है फिर वो वैष्णव कुल में जन्म लेता है।
प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने बारे में, भक्ति सिद्धांत संस्था के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जो वैष्णव को कुल में जन्म लेना, ऐसा। आप सब लोग गृहस्थ लोग हैं, आपके बच्चे जो भी है बहुत ही भाग्यवान है। हो सकता है स्वर्गलोक से आया होगा या डायरेक्ट। मैं प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए थे कि ये जो कर्मी लोग हैं उनको बहुत बड़े तपस्या करना पड़ता है, बहुत व्रत नियम वगैरह रखना पड़ता है, लेकिन जो भक्त, एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छी उदाहरण दिए थे। बहुत अच्छी उदाहरण दिए थे कि पहले जमाने में MBBS पास करना बहुत कठिन होता था। इसलिए जो MBBS पढ़ के बहुत साल तक पास नहीं किया, ऐसे लोगों को RMP करके सर्टिफिकेट दे देते, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम जब गांव में रहते थे, हमारा गांव में ज्यादा से ज्यादा ये RMP होते थे। वैसा ही प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त का फॉल डाउन हो जाता है भक्ति से, ऐसा व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाता है। अभी ये प्रश्न उठता है कि हम स्वर्गलोक, इसलिए हमको एक बात मैं कहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान 11 स्कंद में हमको आश्वासन देते हैं कि जो मेरा भक्त इन केस से भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं किया, साधन भक्ति में, और ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता है, स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता, ऐसा डिवोटी को मैं स्वर्गलोक नहीं भेजूंगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा। एक जैसा कि मैं 2 श्लोक में बताऊंगा, आप हर दिन ये जो श्लोक है ना, भगवान, ये जो प्रार्थनाएं हैं भगवान के सामने करना चाहिए, भगवान को स्पष्ट करना चाहिए। मैं एक विष्णु पुराण में एक ज्यादा डिटेल्स दिया गया है कि हम सब लोग सोचते हैं, जैसे कि भागवतम के अनुसार ध्रुव महाराज 6 महीने के अंदर भक्ति में सिद्ध हो गया, परफेक्शन, लेकिन वो सच नहीं है। क्योंकि जब भगवान नारायण ध्रुव महाराज के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, बोलते हैं मैं एक्चुअली कांच का टुकड़े मैं देख रहा था, लेकिन मुझे वज्र मिला है, डायमंड मिला है। आपको मैंने देख लिया और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए था ब्रह्मा जी से बढ़कर राज्य। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं कि हे ध्रुव, इतना छोटे उम्र में इतना कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए कि मुझे आपका पिताजी से ज्यादा, ब्रह्मा जी से ज्यादा बढ़कर श्रेष्ठ राज्य चाहिए था। फिर मैं नहीं दूंगा तो आप सारे लोग है ना मुझे निंदा करेंगे, अरे देखो इतना छोटा बालक मुझे विष्णु को पूजा किया, फिर उसका डिजायर फुलफिल नहीं किया। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान नारायण उनको अपना पूर्व जन्म का स्टोरी बताता है कि ध्रुव महाराज उनके पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और महान भक्त थे वो, और बहुत ही श्रद्धा से साधन भक्ति कर रहे थे और ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया ध्रुव महाराज। लेकिन उनका एक मित्र थे राजकुमार, राजवंश में जब जन्म लिया हुआ, फिर जब भी ध्रुव महाराज, उनके साथ बहुत मित्रता थी, इसलिए जब भी ध्रुव महाराज अपने राजकुमार मित्र को मिलने के लिए वो पैलेस जाते थे, उनका हृदय में इच्छा पैदा हो गई कि मुझे भी ऐसा पैलेस में रहना चाहिए, ऐसा राज्य भोग करना चाहिए करके उसको इच्छा हो गई। इसलिए उनको
ऑलमोस्ट परफेक्ट होने के बाद भी भगवान नारायण ने कहा कि तुमको ये राजकुल में जन्म लेना पड़ा अभी ये जन्म में, वो भी उत्तम कुल स्वयंभू माने वंश में, लेकिन वो जो इच्छा रहेगी ना उनको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भगवान की ऐसा है इच्छा है ना। लेकिन इसलिए मैं तुमको वर दे रहा हूँ कि 36,000 साल एंजॉय करो, बाद में तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बनाया। भागवतम 14 स्कंद में भागवतम लिखा है कि ध्रुव महाराज हर दिन रात को रोते थे कि मैं इतना दुर्भाग्य हूँ कि भगवान नारायण मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन अभी तक इधर ही सड़ रहा हूँ। मैं ऐसा इच्छा नहीं रखा होता, मैं भगवान नारायण मुझे स्वर्गलोक या ये स्वर्ग सुख वगैरह नहीं देते, ये राज्य सुख वगैरह वो मेरे उनके साथ लेके जाते थे और उनके सेवा में नियुक्त करते थे। इसलिए हमको ये जो विष्णु पुराण से जो स्टोरी है, हमको प्रहलाद महाराज को करेक्ट किए। इसलिए जब भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज को बार बार उत्तेजित कर रहे हैं, प्रलोभ रख रहे हैं कि हे प्रहलाद मुझे कोई भी वर मांगो, लेकिन भगवान नरसिंहदेव इतना फोर्स करने के बाद भी प्रहलाद महाराज इनकार कर देते हैं कि मामाम प्रलोभपत्तया सक्तम कामेषु तैर्वरैः तत्संग बीत निर्विन्नो मुमुक्षु भी ताम उपाश्रितः। मुझे प्रलोभ मत दीजिए भगवान, मैं ऑलरेडी जो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, हम सहज सिद्ध से हमको एंजॉय करने का प्रवृत्ति रहती है। इसलिए ये संग से मुक्त, ये असुरों का संग से मुक्त होने के लिए और ये संसार से मुक्त होने के लिए मैं आपके चरण कमल का शरण लिया हूँ। फिर आप लोग ये 7वां स्कंद 10वां अध्याय से मैं एक श्लोक बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा और भगवान के सामने प्रार्थना कीजिएगा कि यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वां वरदर्शभा कामानां हृदि असंरोहं भवतस्तु वृणे वराम। हे भगवान नरसिंहदेव, यदि असली में आप मुझे वर देना चाहते हैं, वो वरदर्शभा बेस्ट ऑफ गिवर ऑफ बेनेडिक्शन, सबसे श्रेष्ठ वर देने में सबसे श्रेष्ठ तो कांचीपुरम में वरदराजन भगवान है, बहुत आसानी से वर दे देंगे, ऐसा वर दे देते हैं कि हमको बोलना पड़ता है भगवान बस काफी है और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यदि वर देना ही चाहते हैं, मुझे एक वर दीजिए कि मेरा हृदयांतर में अंतराण में जो भी कामना है उनको उकाड़ के मूल से उकाड़ के निकाल दीजिए, क्योंकि इंद्रियाणि मनोप्राण आत्मधर्म धृतिर्मतिः रीस श्रीस तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो भगवान जो हृदय में काम रखता है, हृदय में कामना रखने से एक व्यक्ति में जो भी इंद्रिया प्राण मनो धन बलम अपने धर्म और नम्रता और शाइनेस, ये सारे गुण है ना, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इसके बाद हम स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते हैं या ऊपर के लोक नहीं जाना चाहते हैं। ये और एक प्रार्थना है, ये क्या है? ये 6वां स्कंद भागवतम वृत्रासुर का प्रेयर्स है, बहुत ही सुंदर है। नानाकपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर
अपुनर्भवं वा समञ्जसयात्मा विरहय्यकांक्षा। नाकपृष्ठम का मतलब ध्रुवलोक। पापा जी ट्रांसलेशन करते हैं, हे भगवान, मैं ध्रुवलोक नहीं जाना चाहता, अनाकपृष्ठम न च पारमेष्ठिम, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं जाना चाहता, पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, स्वर्ग है ना, स्वर्ग है ना। और मैं सुतला अतला प्लेनेट पाताल लोक में भी नहीं जाना चाहता, और ना योग सिद्धि, अष्टांग योग सिद्धि में ये जो 8 तरह के ये जो सिद्धि है, योग सिद्धि है, वो भी नहीं चाहता हूँ, और मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। भगवान के जाके मिलन में होना, वो भी नहीं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैं सिर्फ आपके चरण कमल के सेवा, आपको देखना चाहता हूँ। ऐसा ये दोनों प्रार्थना हर दिन भगवान के सामने कीजिए, फिर भगवान से बोल दीजिए कि हे भगवान, इन केस मेरा भक्ति समाप्त साधन में भक्ति परिपूर्ण नहीं हुआ तो कृपया करके मुझे स्वर्गलोक मत भेजिएगा। तो बहुत ही स्ट्रांग डिजायर रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते। जो भी है, वैष्णव कुल में जन्म दीजिए या अच्छे इधर ही जिधर प्रभुपाद जी जन्म लिया, क्लास 10 कर रहे हैं, उधर जन्म लेना। वो बहुत संसार बहुत मैं देखा हूँ, मैं बहुत सारे भक्त लोग, मुझे भी बहुत दुख होता है कि अरे प्रभुपाद जी के समय जन्म लेना चाहिए था, प्रभुपाद जी के साथ संग करना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे डिवोटीज को जब प्रभुपाद जी का पास टाइम हम सुनते हैं, अरे बहुत मिस हो गया। जैसा कि मेरा पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं मुझे कि अरे तुमको वक्त बनना ही था कि इंजीनियरिंग क्यों किया है, तो इतना पैसा खर्च किया और एक सीट वेस्ट हो गया। फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, आप मुझे वृंदावन गुरुकुल में या इस्कॉन में एक स्कूल में कोई एडमिट क्यों नहीं किया? ऐसा करके मैं बोलता था। फिर बचपन से भक्ति करता था, ऐसा प्रभुपाद जी को भी मिलने को चांस मिल जाता था ऐसा। लेकिन इसलिए हमको किसी भी हालत में स्वर्गलोक नहीं जाना चाहिए करके हमको ये इच्छा रखनी चाहिए हमारा हृदय में, है ना। नहीं तो एक बार मैं नवस्कंद भागवतम पढ़ रहा था, उधर है ना लिखा है कि बृहस्पति का पत्नी तारा बहुत सुंदर थी। फिर वो चंद्र सोम उनको देख के आकर्षित हो गया। फिर वो दोनों अफेयर स्टार्ट किया तो फिर बृहस्पति को बहुत क्रोध आया। फिर बृहस्पति कंप्लेन किया तो इंद्र वगैरह उनको चंद्र के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। फिर चंद्र जाके डीमन लोगों का सपोर्ट लिया। फिर दोनों बिकॉज एक औरत के लिए इतना बहुत बड़े संग्राम आरंभ हो गया। एक तरफ बृहस्पति, दूसरी तरफ चंद्र, बहुत युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर बहुत मारामारी हुआ, बहुत लोग मारे गए। और ब्रह्मा जी आए थे। फिर ब्रह्मा जी आए, उनको डांटे थे। फिर तारा को बृहस्पति को दे दिया तो युद्ध समाप्त हो गया। फिर बाद में पता चला कि तारा ये प्रेग्नेंट थी है, तो बच्चा किसका है। फिर
वो संकोच कर रही थी। फिर पेट में बच्चा डांट रहे थे, उल्टा औरत ये सब गलत काम करने के लिए तुमको शर्म नहीं है? अभी कौन बाप कौन है बोलने के लिए तुमको शर्म हो रही है? फिर उन्होंने बोला कि चंद्र का बेटा। फिर वापस उन्होंने बोला मेरा बेटा है, चंद्र बोल रहा था। फिर वो बोल रहे बृहस्पति बोल रहा था वो मेरा बेटा है। फिर वापस युद्ध आ रहा। ऐसा मैं जब 1994 में मैं जब पढ़ रहा था, हम जब 92 में ज्वाइन किया था मैंने, और 91 में आया था, 92 में फुल टाइम जॉब किया। फिर हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ये सब महाभारत का स्टोरी, रामायण स्टोरी ये सब जानते थे, और हमारे घर में देवी देवताओं को पूजा बहुत होती थी, रेस्पेक्ट था। हम सुने थे इन लोगों के सारे बहुत सारे स्टोरी। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ हमारे जैसा लड़ रहे हैं लोग। ये लोग क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गया कि देवता लोग हम जिसको पूजते हैं क्या ऐसा लड़ रहे हैं एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए। तो मैंने जाके हमारा सीनियर डिवोटी रसराज को उससे मैंने पूछा था, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया क्या है, ये क्या चल रहा है? फिर रसराज ने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे कि इससे हमको समझ में आता है कि all these demigods and all these demigod planets, they are complete nonsense. इसलिए हम कभी भी उधर जाने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। ऐसा मेरे को वही बात है ना, हमको मेरा दिमाग में बैठ गया था। फिर बाद में जब मैंने सुना था 90% ISKCON devotees will go to स्वर्गलोक, ये क्या है? इनके समाप्त परिपूर्ण नहीं हुआ भक्ति में, फिर स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। फिर बाद में जब 11 स्कंद भागवतम पढ़ रहा था, तभी कृष्ण भगवान आश्वासन देते हैं कि जो मेरा भक्त स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते, मुझे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको भेजूंगा नहीं स्वर्गलोक। ऐसा ये जिनको स्वर्गलोक जाना चाहते हैं भक्त लोग, वहाँ बहुत सारे भक्त लोग जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बस उन लोगों के बहुत ही आसान है। हम देखते हैं बाहर के कर्मी लोग अमेरिका जाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। वो लोग वीसा के लिए GRE पास करो, GMAT पास करो, और क्या TOEFL ऐसा कुछ एग्जाम है वो भी पास करो, और इंटरव्यू दो, 50 लाख ऐसा उन लोगों के एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़ता है, 1 करोड़ एजुकेशन लोन लो, इतना झंझट है। मैं देखता हूँ हमारे भक्त लोग अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग, बिहार से बंगाल से आए हुए हैं, यूपी से, अभी वो लोग मैं देखता हूँ अमेरिका में चले जाते हैं बहुत आसानी से। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, वीसा इंटरव्यू के लिए, मुझे पूछा गया था, मेरे से पूछा था इंटरव्यू ऑफिसर क्यों जाना चाहते हैं। मैंने बोला मैं पुजारी हूँ, उधर पुजारी का लोगों को ट्रेनिंग देने, क्या मंत्र बोलो। मैंने बोला नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। ओह वेरी नाइस वीसा ग्रांटेड, तुरंत मिल गया इतना आसानी से। तो फ्रेंड्स को आश्चर्य हुआ, इतना आसानी से तुमको वीसा मिल गया। वैसा ही वैसा ही ISKCON में फॉल डाउन हो गया तो स्वर्गलोक भेज देंगे भगवान। इसलिए सावधान रहना, फॉल डाउन ना होना। तो फॉल डाउन नहीं हुआ होगा भी, भगवान से प्रार्थना करना कि इन केस भगवान फॉल डाउन हो गया तो डोंट सेंड मी टू स्वर्ग लाइक दैट। कितने बजे तक क्लास?
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु 9, 9, 9, 10 तक है प्रभु जी। बाद में थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन और थोड़ा अनुमोदन प्रभु जी। ठीक है, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। सो नवा अध्याय भगवत गीता में कृष्ण भगवान बहुत ही जैसे कि कृष्ण भगवान में 4 वेदांत देशिका करके एक महान श्री वैष्णव आचार्य अपने यादवाभ्युदय में लिखते हैं कि कृष्ण भगवान के अवतार में 4 विशेष लक्षण हैं। हम बोलते हैं फ्लूट, सुंदर भक्त, सौंदर्य, ये सब 4 है ना। लेकिन श्री वैष्णव उन लोग लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जो 4 विशेष लक्षण हैं वो क्या है। एक है भक्त वत्सलता, दूसरा है सौलभ्यता, तीसरा है सौशील्यता, और चौथा है भगवत्तता। जैसा कि कृष्ण भगवान ये जब गाय है ना, एक गाय बछड़ा को जन्म देती है उस समय उनके ऊपर बहुत कचरा रहता है, ब्लड वगैरह, पस वगैरह। फिर गाय बहुत प्रेम से वत्स को बछड़ा को अपना जीभ से चाटती है और पूरा क्लीन कर देती है। इसलिए वत्स बोलते हैं, भक्त प्रेम है। कभी कभी गाय मर जाती है बोलते हैं, ऐसा साफ करते टाइम, चाटते समय, फिर भी गाय करती है। वैसा ही कृष्ण भगवान, इसी से आया है भक्त कृष्ण भगवान का वात्सल्य, वत्स। गाय को बहुत प्रेम है अपने, जब बछड़ा जन्म लेती है बहुत प्रेम है। वैसे ही भक्त वत्सलता इसी से आया है। कृष्ण भगवान वैसा ही हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब कृष्ण भगवान का शरण लेते हैं, भक्त वत्सल कृष्ण भगवान हमारे सारे पापों को छाड़ देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और दूसरा है सौशील्यता। सौशील्यता का मतलब उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी नीच कुल के लोगों के साथ मित्रता रखना, उनको समान दृष्टि से देखना और उनको प्रेम करना, फिर उसको बोलते हैं सौशील्यता। भगवान रामचंद्र गुहा के साथ मित्रता रखे हैं और सुग्रीव के साथ रखे हैं, और मानवतर बंदरता, ये आदिवासी था, फिर भी भगवान रामचंद्र बहुत ही श्रेष्ठ राजकुल में सूर्यवंश में जन्म लिए थे। लेकिन उनके मित्र कौन है? बंदर है, गुह आदिवासी है, उनको अपने भाई समझते थे। 5वां भाई कौन है? गुह। अपने आत्म के समान समझते थे। यही सौशील्यता है। वैसे ही कृष्ण भगवान सूर्यवंश में जन्म लिए हैं, चंद्रवंश में जन्म लिए हैं, सूरसेन का वंश में, और सौरी बोलते हैं कृष्ण भगवान। लेकिन उन्होंने मथुरा छोड़ दिए और वृंदावन में आभीर वंश के जो जाति लोग, वैश्य लोग, नंद महाराज और यशोदा और बाकी गोपियां, उनके साथ मित्रता रखते थे और उनके साथ मिलजुल के घूमते थे। इसको बोलते हैं सौशील्यता। पुरंदर एक कर्नाटक में एक महान भक्त थे, वो एक पद में, भजन में लिखते हैं कि जब माताएं कृष्ण जब बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अपने पैरों के ऊपर सुला के तेल से मालिश करके पानी से नहलाते हैं, वैसा ही यशोदा माता कृष्ण को अपने पैर को थोड़ा लंबा करके उनके पैरों के ऊपर सुला के एडिबल ऑयल, कृष्ण हमेशा बचपन से नटखट है ना, इसलिए तेल पी लेता था, इसलिए उसको एडिबल ऑयल से, तेल से वो मसाज करती थी। इतना तेल लगाती थी। कृष्ण को भय होता था, डर लगता था
कि मैं गिर जाऊंगा क्योंकि इतना स्लिपरी हो रहा था। फिर उन्होंने यशोदा माता का चरण को बहुत जोर से पकड़ लेते थे। फिर पुरंदर जी लिखते हैं, हे कृष्ण, बहुत सारे ऋषि लोग, मुनि लोग लंबी लंबी तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं कि आपका चरण कमल को दर्शन करने के लिए, आपका चरण कमल को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक आभीर स्त्री का चरण पकड़ लिया आपने जोर से। जो लोग लेफ्ट हैंड्स और राइट हैंड्स का भेद नहीं समझते हैं, इसका मतलब कहते हैं ऐसा स्त्री का चरण पकड़ लिया, इसको बोलते हैं सौशील्यता, राइट? सौलभ्यता मतलब इजीली अवेलेबल। हमको ये नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए अरे कृष्ण इतना महान है, भगवान है, उनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और भगवत्ता, वैजयंती माला इसलिए पहनते हैं, ये जो माला 5 तरह के फूल रहते हैं, वो पंचभूत के कंपैरिजन किया गया है। पंचभूत का नायक है भगवान है, इसलिए मैं 9वां अध्याय से इसका मैं समन्वय करता हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाप, ये श्लोक और 2 श्लोक है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधन्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। त्रैविद्या माम सोमपाप भूतपाप यज्ञ दृष्ट्वा, ये जो दोनों श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्वर्गलोक जाने के लिए तीनों वेदों के फॉलो करके, यज्ञ करके, सब बहुत खर्चा करके, बहुत कठोर तपस्या करके स्वर्गलोक जाते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्गलोक में बहुत काल तक एंजॉय करने के बाद पुण्य क्षीण हो जाता है, तभी वापस इधर आके जन्म लेते हैं, ये सब बता रहे। लेकिन उसके बाद कृष्ण भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्राकात्मनः। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, आप मुझे स्वर्गलोक जाने के लिए इतना तपस्या करना पड़ती है, इतना खर्चा करना पड़ती है, लेकिन मुझे मेरे पास आने के लिए, मेरा लोक आने के लिए, वैकुंठ लोक आने के लिए बहुत ही आसान है, सौलभ्य, इसको बोलते सौलभ्य होता है। आप एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज हमारे बचपन में भी हमारी माँ सिखाई थी हमको, जो भी चीज हम लेते हैं, नया लेके आते हैं, या जो भी खाना होता है उसको कृष्णार्पण मस्तु करके बोल के करना चाहिए। कृष्णार्पण मस्तु, ये बात, ये शब्द हमेशा आपके जीव के ऊपर होना चाहिए। कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु, कृष्ण को अर्पण। आप विष्णु अर्पण मस्तु, रामार्पण मस्तु नहीं बोल सकते, कृष्णार्पण मस्तु, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्राकात्मनः। मुझे आप लोग दीजिए, मैं लूंगा। सिर्फ एक ही अवतार में भगवान ने बेगिंग किया है, उधर वामनावतार में। वामनावतार में बलि महाराज के पास जाके उन्होंने भीख मांगे थे, मधुकरी किए थे। फिर उन्होंने सोचा था कि अरे बलि महाराज सिर्फ बलि महाराज से लेगा, इसलिए वामनावतार हमसे नहीं लेगा, ऐसा करके सोचेंगे करके भगवान कृष्ण अवतार में वो आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, कि कोई भी मुझे आके पत्र पुष्पम तो देंगे भक्ति से, प्रेम से, मैं स्वीकार करूंगा, मैं स्वीकार। ये इसी को बोलते हैं सौलभ्य अवतार। बहुत आसान कर दिया। जस्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किधर भी मिलेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं असना में, ठीक है मैं खाता हूँ, बोल रहे हैं खाता हूँ। जैसे कि बंगाली लोग बोलते हैं जल खाओ, कृष्ण भगवान बंगाली बन गए थोड़ी देर के लिए, बोलते हैं मैं जल भी खाऊंगा, ठीक है जल भी खाएगा, जल पीते हैं, पत्रम खाएगा तो ठीक है, उतना ही नहीं पुष्पम भी खाएगा, बोल रहे हैं जल खाएगा, पत्रम पुष्पम फलम, फल तो खाएंगे। तो इस विषय में आचार्य लिखते हैं कि जब ये श्लोक कह रहे थे कृष्ण भगवान पत्रम पुष्पम फलम,
यो मे भक्त प्रयच्छति। उनको भक्ति के बारे में सोच के इतना एक्सटेसी आ गया कि वो एक्सटेसी में, भाव में भगवान बोल रहे खाएगा, पुष्पम खाएगा, जल खाएगा, ऐसा भक्ति, लोगों भक्ति के साथ आकर करना। तो फिर भक्ति नहीं है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भक्ति नहीं है तो ठीक है, जो भी तुम काम करते हो मेरे लिए करो, जो भी खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ। इसलिए जो भी हम खाते हैं, जो भी नया वस्तु लेके आते हैं, नया चीज लेके आते हैं, कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु। आंध्रा में एक महिला, उनको ये बहुत आदत थी कि कोई भी चीज लेके आएगी, कोई भी चीज मिलता है उनको कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु करके करती थी। कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु, है ना। रात को सोने से पहले हम कायेन वाचा मनसेंद्रिय, हम मनस कायेन ये सब मनस ये तीनों से जो भी हम काम किए हैं कृष्ण भगवान को अर्पण करना चाहिए। सो फिर ये स्त्री क्या हो गया, जब भगवान नारायण ने, कृष्ण भगवान ने उनको गोल्डन विमान भेजे थे लेके आने के लिए। फिर जब गोल्डन विमान आया था तो लेके जाने के लिए, वो स्त्री, उन्होंने उनको बोल दिया कृष्णार्पणमस्तु। वो गोल्डन विमान को भी कृष्णार्पणमस्तु कर दिया। फिर क्या करे, फिर कृष्ण भगवान स्वयं आए थे उनको लेके जाने के लिए। ऐसा कृष्णार्पणमस्तु याद करो, दिस इज सौलभ्य अवतार। स्वर्गलोक जाने के लिए बहुत सारे यज्ञ वगैरह करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण भगवान को पास जाने के लिए सिर्फ तुलसी पत्र ऑफर करो। आप लोग जानते हैं कौन सा पत्र ऑफर करने का, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। एक आचार्य कमेंट करते हैं कौन सा पत्र ऑफर करना चाहिए, तुलसी पत्र तो ठीक है, और एक पत्र है, और कौन सा फलम तोयम, ऐसा। फिर कौन सा पानी ऑफर करना चाहिए, ये सब लिखा है कि हम जब भागवतम पढ़ते हैं हमारे आंखों से आंसू आने चाहिए, वो आंसुओं को कृष्ण भगवान को अर्पण करना चाहिए। वैसा ही फलम, फलम कौन सा फल को ऑफर करना चाहिए, ये क्या है, मैंने भूल गया था। 8 तरह के फल भगवान को अर्पण करना चाहिए कि अच्छे क्वालिटीज है, क्षमा करना, और शौचम, सत्यम, सत्य हो गया। एनीवे, ऐसा। फिर मैं फिनिश कर दूंगा। सौशील्यता के बारे में बोल रहे हैं भगवान कि अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्यभाग साधुरेव स्मन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे वक्त्र प्रणश्यति सम्मोहं सर्वभूतानि न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या। ये श्लोक का अर्थ है, एक कहा गया है कि सम्मोहम सर्वभूतानि न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। कोई सोचेगा कि ठीक है आप अपने भक्तों से स्वीकार करेगा, लेकिन बहुत सारे डिवोटी, बहुत सारे लोग हैं कृष्ण से द्वेष करते हैं, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे? भगवान बोल रहे हैं नहीं, मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा उनके, मैं वो शायद मुझे
द्वेष करेगा, लेकिन मैं उनको द्वेष नहीं करता हूँ। अपने गलती मान के मेरे पास आएगा, फिर भी मैं उनको स्वीकार करूंगा, मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। वो ये श्लोक का वो अर्थ है। इसलिए अभी जैसे दुराचार हो, बहुत सारे पापी व्यक्ति हो, फिर दुराचारी हो, मेरे अनन्य भक्ति करेगा तो उनको साधु मानना चाहिए। इसको बोलते हैं आचार्य सौशील्यता। ये नवाध्याय भगवद गीता का बहुत ही डीप मीनिंग है। ऐसा लिखा है कि भगवान ये 4 विशेष लक्षण ये नवाध्याय में प्रकट करते हैं। बहुत ही आसान है ऐसा करके। पहला 4 श्लोकों में अपने भगवत्ता बताते हैं। इसलिए हम नवाध्याय बहुत ही श्रद्धा से सुननी चाहिए। और प्रभुपाद जी भी कोट किए थे, यान्ति देवगता देवान पितृ यान्ति पितृगता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मर्यादि। ये है। हम गोलोक वृंदावन जाना आसान है स्वर्गलोक जाने से। प्रभुपाद जी लिखते हैं 3रा स्कंद भागवतम में कि वैकुंठ जाना आसान है, नरक जाना बहुत कठिन है। नरक जाने के लिए परस्त्री संग करना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, दारू पीना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को कष्ट देना पड़ेगा। लेकिन वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए बहुत आसान है। मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन लो, आनंद में नाचो गाओ और प्रसाद ग्रहण करो, बहुत आसान है। गोलोक वृंदावन जाना आसान है स्वर्गलोक जाने से। या नरक जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम याद रखना, ये दोनों श्लोक आप याद रखिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए कि मुझे स्वर्गलोक नहीं जाना है, तभी कृष्ण भगवान नहीं भेजेंगे। और ऐसा इच्छा रखना भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप आए, आप इतना बिजी टाइम में से आपने ओके अनम्यूट कीजिए। ओके पकड़ लो। हरे कृष्णा। I can't hear. जी कौन प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, साधु साधु प्रभु जी। आपने बहुत अच्छी तरह ये श्लोक के माध्यम से हमें ये जो स्वर्ग के बारे में हमें समझाया। और ये श्लोक के माध्यम से प्रभु जी आपने हमें हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, गोलोक धाम जाना जो सरल है। और जो हम ये आपने जैसे बताया प्रभु जी कि 90% इस्कॉन डिवोटीज को भी स्वर्ग में जाएंगे। तो प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि हम ऐसा बाहर से एक्सटर्नली हमें ऐसा है कि हम भगवान के धाम में जाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण ले, लेकिन इंटरनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंटरनली वो भक्ति लता बीज के साथ दूसरे वीड्स भी है जिसमें ये सेंस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, ईगो है, फिर जैसे प्रपंच है, और ये ज्यादातर प्रभु जी मतलब भक्ति के जो ये 6 चीज हैं जो भक्ति से विनाश करते हैं वो भी बढ़ते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जिज्ञासा है कि ये वीड्स को हम लोग कैसे निकालें, और जो हमारा ये गोल है उसके प्रति हम कैसे और अपना ये प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सके प्रभु जी, कि हमें सिर्फ भगवान के धाम में ही जाना है, भगवान की भक्ति करनी, भगवान के शरण लेना है प्रभु जी। ये एक जिज्ञासा थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। और हम लोग सभी अतिथि भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली हम ये वीड्स को हम नहीं निकाल सकते हैं, भगवान निकालेंगे। हम तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया होगा शायद, 3 चीज है, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम।
आप लोग सुना ये तीन दशमस्कंद भागवतम कमेंट्री में लिखते हैं कि हम है ना श्रवणम हरे कृष्ण महामंत्र सुननी चाहिए और मननम का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ जानना चाहिए। मैं हे राधा एंड कृष्ण मैं। और निधिध्यासनम का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि हम राधा कृष्ण दर्शन का तीव्र कामना रखना चाहिए, तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। फिर हम जब तीव्र इच्छा के हम जब जप करेंगे ध्यान से, फिर जो भी वीड्स है भगवान निकाले, वो गार्डनर है। फर्स्ट अध्याय में वही लिखते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सो भगवान है ना गार्डनर है, जो फार्मर है। फिर जो वीड्स है, ये जो दुर्योधन वगैरह, उनको निकालने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध संपन्न किए। ऐसा ही भगवान निकालेंगे, हमको इच्छा रखनी चाहिए। मैं राधा कृष्ण का दर्शन लेना चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी एक लास्ट, ये रेफरेंस में नहीं है, लेकिन प्रभु जी अगर बाद में चांस मिला तो मैं पूछता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। लास्ट में चांस मिला तो पूछता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। सूरत माधव प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, बहुत ही ऐसा लग रहा है आप कंटिन्यू हमको शिक्षा देते जाए और हम सुनते रहे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो अगर उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 90% इस्कॉन के डिवोटी स्वर्ग लोग जाएंगे, तो अगर हम लोग इच्छा भी ना करें, मतलब जो 10% तो रहेंगे, जो अगर हम 90% में आते हैं तो कैसे होगा प्रभु? क्योंकि प्रभुपाद का ये मतलब शुद्ध भक्त ने ये मतलब प्रेडिक्ट किया है। जस्ट एक पूछना था प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभुपाद जी क्या नाम है, राम श्रद्धा, एक तेलुगु डिवोटी जर्मनी से है। वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी उनको बोले थे कि ये जो इस्कॉन में ये जो पावर है, पोस्ट है, ये सब के लिए है ना, ये जो पाश्चात्य देश के भक्त को उनको लड़ने दो। आप लोग भारत में जन्म लिए हो, आप चुपचाप प्रेम भक्ति करके गोलोक वृंदावन चले जाना, ऐसा करके बोला। ये जो पैशन में रहते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं, उन लोगों को ये चाहिए सब पोस्ट, पोजीशन, एंजॉय करना, ये सब। फिर हम 10% में रहना चाहिए। मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बता दिया कि हे भगवान, मुझे फेल हो गया तो स्वर्गलोक मत भेजिएगा। कृष्ण भगवान ने सोल्यूशन दिए थे। हर दिन प्रार्थना करो। और मुझे मैंने जो 2 श्लोक मैंने सिखाया था वो याद करो और भगवान को अपना इच्छा प्रकट कीजिए भगवान के सामने कि मैं स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हाँ प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा थी प्रभु जी कि मेरा हमेशा एक ही इच्छा रहता है कि भगवान अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में वापस नहीं आना है। मेरा इच्छा है कि गोलोक धाम में रहना है। ऐसा मैं हमेशा श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरे गुरु महाराज और प्रभुपाद की मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इधर वापस नहीं आना है, मुझे गोलोक धाम ही जाना है प्रभु जी। तो प्रभु जी एक डिवोटी ने मेरे साथ ऐसा डिस्कशन हो रहा था, तो भी वो डिवोटी मुझे बोल रहे थे कि डिवोटी को ऐसा कामना नहीं करना चाहिए। उसको वो किधर भी नर्क पे रहेगा तो भी उसको बोलना चाहिए कि मुझे भगवान आपके भक्तों का संग होना चाहिए। तो डिवोटी को ये नहीं मांगना चाहिए भगवान को कि मुझे गोलोक धाम चाहिए। तो प्रभु जी पे थोड़ा सा कंफ्यूज था प्रभु जी, कंफ्यूज स्टेटमेंट। वो बोलता कि हम लोग क्यों मांगे भगवान को
तो प्रभु जी आप थोड़ा सा Very इसके nice बारे में question. थोड़ा सा प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप हमेशा बोलते रहते हो गो बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, लेकिन महाप्रभु बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता मा जगदीशका में मम जन्मनि जन्मनि शुभता भक्ति आयति पितृ। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिए थे। आपका सेम प्रश्न है, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए थे कि मैं करूंगा जन्म जन्म लेके प्रचार वगैरह, आप गोलोक वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड बहुत ही रिस्की प्लेस है, डेंजरस प्लेस है, बाद में पता नहीं कुछ भी हो सकता है, महाभागवत लोग भी कभी कभी फॉल डाउन हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए सेफ है गोलोक वृंदावन चले जाओ। इसलिए हमको इच्छा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रह्म कामना बोलते हैं, हम किसी को काम पे इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमारा आपको जो इच्छा है वो है, सब ब्रह्म कामना है। जैसे कि भगवान बोलते हैं मेरे प्रति जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी कामना रखता है, उसको तो ब्रह्म कामना है। वो ब्रह्म कामना कैसा है कि फ्राइड अप सीड्स, जैसा जला हुआ बीज वृक्ष को पैदा नहीं करता है, वैसा ही मेरे प्रति जो भी कामना रखता है, ऐसा वो कामना भौतिक दुनिया में कोई फल नहीं देता। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि वापस जन्म ले और सेवा करे, कुछ लोग चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाए, दोनों ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी हमको उपदेश दिए थे कि आप चले जाओ गोलोक वृंदावन, रिस्की प्लेस, वापस जन्म मत ले। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? so much. Thank you so much. Yes प्रभु जी, thank you so much. और जैसे आप बोल रहे थे ना प्रभु जी, एक होप वापस जागृत हो गया प्रभु जी की अगर कोई नरक जाना गया है तो उसको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन अगर गोलोक धाम जाना है तो कितना इजी है। सो ये आपने जो पॉइंट बताया ना, मुझे बहुत 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 मतलब क्या बहुत खुश हो गया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न था प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था कि कृष्ण जब भी कोई भी खाने की चीजें लाते थे, जो भक्त थे तेलुगु से, जो माता जी थी, तो वो कहते थे कि कृष्णा अर्पणम मस्तु। तो हम ये सुनते हैं कि कभी श्री विष्णु भी बोलना है, तो एक्चुअली क्या बोलना है प्रभु जी? कृष्णा अर्पणम मस्तु बोलना है कि श्री विष्णु बोलना है प्रभु जी? हम कृष्ण के भक्त हैं ना, आप ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम कृष्ण के भक्त हैं ना, इसलिए कृष्ण कृष्ण बोल, श्री गोविंदा हमेशा बोलते रहिए। हम मनसा वाचा कर्मणा काम करते हैं ना, कृष्ण भगवान के आप लोग और एक अभी टाइम नहीं है, मैं और एक बार बताऊंगा। कृष्ण भगवान के पिन कोड नंबर है गोविंदा, मैं और एक बार बताऊंगा। सो गोविंदा करके हम पुकारेंगे, तुरंत आ जाते हैं। इसलिए हम एक वैष्णवाचार्य लिखते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा हम काम करते हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं उसको शुद्ध पवित्र करने के लिए हमेशा श्री गोविंदा श्री गोविंदा श्री गोविंदा ऐसा बोलते बोलते सारे काम करना चाहिए। पहले से काम करने से पहले श्री गोविंदा श्री गोविंदा श्री गोविंदा करना चाहिए, काम खत्म होने के बाद कृष्णार्पणमस्तु करना चाहिए, ये एडवाइस है। और बाकी लोग है ना बोलते हैं विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हम कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हम कृष्णार्पणमस्तु बोलना चाहिए। विष्णु अर्पणमस्तु किधर भी नहीं लिखा है, रामार्पणमस्तु किधर भी नहीं लिखा, कृष्णार्पणमस्तु ये से कोई भी हम ऑफर करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला है ना पत्रम पुष्पम फलम मैं लूंगा, इसलिए हम कृष्ण को ही अर्पण करते हैं। ठीक है माता जी, सेटिस्फाइड? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो भी प्रश्न प्रभु जी ने पूछा था कि हमें कृष्ण की हमें स्वर्लोक के लिए कामना, गोलोक के लिए कामना करनी चाहिए या फिर मीन्स किस तरह की कामना चाहिए ताकि हम कृष्ण भगवान के पास हो सके, तो इज इट नॉट पॉसिबल कि प्रभु हम सिर्फ भगवान को, श्री कृष्ण को यही प्रार्थना करें हमारे जीवन में कि हमें कहीं भी रह गए
चाहे यहाँ पे हो या गोलोक धाम में हो, बस उनके चरणों की सेवा मिले। क्योंकि हमारे मन में कितनी शुद्धता है, कितने प्रेम से हम भगवान को करते हैं, वो सब अंतर्यामी है, वो तो जानते ही है। और उनको अपने भक्तों को किस तरह से उनको ये करना है वो स्वयं जानते हैं। तो वो उनके पास बुलावे या हमें इस पृथ्वी लोक पे ही रह के उनके भक्तों के साथ रखे और सेवा का मौका दे, वो उनपे हम छोड़ के सिर्फ हम उनकी सेवा से नित्य मिलती रहे, यही हम कामना करें तो कैसा रहेगा? आप शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, आई नंदतनूज किंकरम पतितम मामिष में भवम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इसका अर्थ क्या है? हे कृष्ण भगवान, ये जो श्लोक है ना, प्रभुपाद जी 66 में डिवोटीज को सिखाए थे, पहला डिवोटीज को सिखाए थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि संसार में सबसे श्रेष्ठ उत्तम सेवा कृष्ण भगवान के लिए क्या है? उन्होंने बोला तुलसी चंदन के साथ कृष्ण के चरण में अर्पण करके ये श्लोक बोलने का, आई नंदतनुज किंकरम पतितम मामिष। इसका मतलब क्या है? मीन्स हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं और कृष्ण के चरण कमल में धूली बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद है ना धनम न जन्म न सुंदरी, उन्होंने क्यों कहा था कि जन्म है ना, बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। फिर इसका अर्थ कहा गया है, हे भगवान, मैं जब अनक्वालिफाइड हूँ आपके गोलोक वृंदावन जाके सेवा करने के लिए, मैं अभी जाऊंगा, मैं अनक्वालिफाइड हूँ, इसलिए मैं डिस्टर्बेंस बन जाऊंगा उधर जाके वो बाकी भक्तों को और आपको डिस्टर्ब करूंगा। इसलिए मैं जब तक क्वालिफाइड नहीं हूँ तब तक मुझे ये सब नहीं चाहिए। ना धनम न जन्म न सुंदरी कविता न जगदीश कामये मम जन्म जन्म भवतात भक्ति अहित्य विप्रये। आपका भक्ति में लगा। जब तक हम क्वालिफाइड नहीं रहते तब तक ये इच्छा हमको रखना चाहिए कि मैं गोलोक वृंदावन जाना नहीं चाहता, मैं कुछ जाना नहीं चाहता, लेकिन यदि आपको मुझे जन्म लेना ही है, आपका सेवा में नियुक्त करो। ये अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं गोलोक वृंदावन जाके चरण कमल के धूली बनना चाहता हूँ। तो ये हमारा ये है। इसलिए ये ठीक से समझना चाहिए कि हमको, आप 10वें स्कंद भागवत पढ़ेंगे, गोपियां ये सब कुछ कर रही है, लेकिन गोपी कितने क्या कर रही है? क्योंकि हे कृष्ण आप आओ, आपका व्रज जनार्दिहन वीरयोषितम निज जनस्मया वंशनस्मिता भव सखी भवान किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारु दर्शया। पहला श्लोक में वो लोग बोलते हैं कि विरचिता भयम कृष्ण दूर्यते चरणमीयुषाम संस्मृतेर्भयात् करसरोरुहं कांतकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। कृष्ण भगवान चले गए, गोपियां बोल रही थी कृष्ण आप आओ, आपके चरण आपका हस्त कमल को हमारे सिर के ऊपर रखो। फिर बाद में अगला श्लोक में बता रहे हैं कि जलरुहाननम चारु दर्शया, आपका सुंदर मुख का दर्शन दो। देन प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकृचेष्णः वृन्दिहुच्चयम्। ये श्लोक में बोल रहे हैं कि आप आओ और आपके चरण कमल को हमारे वक्षस्थल के ऊपर रखो। ये क्या है? वो कृष्ण के दर्शन का लालसा कर रही है। हमको कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण का दर्शन का लालसा रखनी चाहिए। ये क्या है कि हम इधर रह के सेवा करेंगे? साक्षात राधा कृष्ण का सेवा करने का अत्यंत उत्कंठा रखनी चाहिए हमको। ये हमारा सिद्धांत है। फिर ये उसका फिर जन्म जन्मांतर क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है इसके लिए। जब तक हम क्वालिफाइड नहीं होते हैं तब तक आप किधर भी जन्म दो, लेकिन आपका सेवा में नियुक्त करो। आई होप दिस क्लियर्स द मैटर।
यस प्रभु जी, yes, धन्यवाद। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। एक प्रश्न पूछना था आपसे। या प्रभु जी काफी अच्छा क्लास था आपका। आपसे एक ये प्रश्न पूछना है मुझे कि ध्रुव महाराज की आपने बताया था उनकी एक इच्छा थी कि ऐसा महल में मुझे राज्य करना है, इसीलिए भगवान ने उनको ये इच्छा फुलफिल करने के लिए मौका दिया। हाँ प्रभु जी मैं आपसे ये पूछना था कि ध्रुव महाराज ने उतनी भक्ति से भी उनकी इच्छा का जो जो इच्छा मन में आई थी वो उसका नष्ट नहीं होती क्या इच्छा? मतलब इच्छा अगर एक बार मन में आ गई तो वो पूरी होके ही रहेगी क्या? ये प्रश्न है मेरा आपसे। हाँ, इसका इसका सॉल्यूशन प्रहलाद महाराज ने दिया था। मैंने जो श्लोक किया है ना, कोट किया था, इसलिए मैंने कोट किया था कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं जो भी कामना है प्लीज आप निकालिए, मुझे फुलफिल मत करना ध्रुव महाराज का फुलफिल किया जैसा। वो प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है। इसलिए हम तीव्र इच्छा रखेंगे, हम भगवान प्लीज डोंट फुलफिल दिस डिजायर, फिर वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको इच्छा था। फिर ये जन्म में भी उन्होंने वही इच्छा किए थे कि ब्रह्मा जी से बढ़कर, क्योंकि वासना बोलते हैं, वासना निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो वासना नहीं निकला ध्रुव महाराज का, इसलिए पिछले जन्म का इच्छा के वजह से रखने के वजह से ये जन्म में भी वही इच्छा रखा था उन्होंने। इसलिए हम वो वासना को हमको निकालना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये अपन हम जो भक्त लोग सुबह पहले जो हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करते हैं, मतलब करता है कोई व्यक्ति, तो वो इसकी इच्छाएं जो है ये सब खत्म हो जाती है ना, इच्छा जो हेलो। हाँ प्रभु जी, पिछले जन्म में भी जो कुछ इच्छा है और जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या क्या इच्छाएं की है, तो वो भी उसकी खत्म हो जाती है इच्छा, अगर वो सुबह पहले अच्छे से महामंत्र करता है तो हरे कृष्ण महामंत्र जी से। हाँ, चौथा अध्याय भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पित वर्जिता। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो जो व्यक्ति ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितम बुधः, जो व्यक्ति काम का संकल्प त्याग करके यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, कामना सारे कामनाओं को त्याग करके आसक्ति छोड़ के मेरा पूजा करता है, फिर ऐसा व्यक्ति वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान के अग्नि में सारे कर्म और कर्म के फल और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं ये ज्ञानाग्नि कौन सा है कि मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ, ये ज्ञान है, ज्ञानाग्नि बोलते हैं प्रभुपाद जी। ऐसा जो व्यक्ति मैं सोचता हमेशा सोचता रहते कि मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ, ऐसा व्यक्ति वो ज्ञान के अग्नि में वो सारे पाप, सारे कर्म, सारे इच्छाएं जलकर राख हो जाएंगे। याद रखना, गो एंड रीड दैट 4th चैप्टर श्लोका। ज्ञान यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्पित वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितम बुधः। ठीक है। जी 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 प्रभु जी। तो जी एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि देवताओं का शरीर और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर रहता है प्रभु जी? प्रभुपाद जी बोले हैं, आपने कभी एनीवे लेडीज आर देयर। ओ प्रभुपाद जी ने बोला देवता इतना, अप्सराएं इतना सुंदर होती है, इतना सुंदर होती है, आप देखोगे तो मूर्छित हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला यू विल उन लोगों का शरीर में इग्नोरेंस नहीं रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है और सत्वगुण का शरीर है उन लोगों का।
कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।